Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today is our 18th lecture. So we will continue by summarizing the previous lecture, and in the last lecture we understand that what is first order derivative using the gradient operator, and we also learned the Sobel operator using first order derivatives. And after that we learned that what are edges and how do we find the edges, what is the importance of it, and how do we use it, where do we need it. And then again we learn the modeling intensity changes, that if we want to learn how to model the changes in intensity, then what are the methods for it. And then after that we also learned that what are the basic steps for edge detection. So this was the summary from the previous lecture, and today we will learn some new things, and that is frequency domain filtering. So until now we learned that the spatial domain filtering, and now today we will learn the the frequency domain filtering. So there are again the same types of filtering, but this time we will learn with the frequency domain. So there are some ideal low pass filtering, so we will learn how to make the equation of it, and then how do we use it, and what is the importance of it. And then after that we will also learn high pass filtering, and with low pass filtering and high pass filtering there are Butterworth high pass filtering and Gaussian high pass filtering, and it's also with low pass filtering. And then we will also see the Laplacian in frequency domain, because earlier than that we learn it in a spatial domain. And then also we will learn high boost filtering and homomorphic filtering. So today's lecture will be totally based on frequency domain filtering. So a bit of background, what is the frequency domain, and if we look for any function that periodically repeats itself, can be expressed in sum of sine and cosine of different frequencies, each multiplied by a different coefficient. So we know that if we have a Fourier series, then in Fourier series it's actually the summation of sines and cosines of different frequencies, and then we multiply each by a different coefficient. So then this we call it as a Fourier series. So in the frequency domain we will normally need the Fourier series, and this we already have some basic idea from mathematics, that how the Fourier transform and Fourier series are designed, and how to make the equations of it. So even functions that are not periodic but whose area under the curve is finite can be expressed as an integral of sine or cosine multiplied by weighting function, and this is, we call it Fourier transform or Fourier transformation. So this is if something that is not periodic even. So for not periodic, if it is under the curve, so the function which is under the curve and it is finite, then what we can do, we can also take integral of sine and cosines and multiply it with the weighting function. So whatever the weighting function is, then what we call it as a Fourier transformation. So in the frequency domain refers to the plane of two-dimensional discrete Fourier transform of an image. So what we do, we take the plane in two-dimensional, and then after that the discrete Fourier transformation of an image is constructed. So the purpose of the Fourier transform is to represent a signal as a linear combination of sinusoidal signal of various frequencies. So sinusoidal frequencies, the signals that we want to represent it in various frequencies, then for that we need to have a
फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है कि जो साइनसॉइडल हमारे पास सिग्नल्स होते हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वेरियस फ्रिक्वेंसीज़ के अंदर। जब हम उसको फ्रिक्वेंसीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें। तो यहाँ पर क्या है कि द फंक्शन एट द बॉटम इज़ द सम ऑफ द फोरियर फंक्शन अबव इट। तो ये जो है ये समेशन है फोरियर फंक्शन का, जो इसके सारे सबका समेशन हम करते हैं। और ये जो था फोरियर साइंटिस्ट जो था, जो मैथमेटिशियन था, उसने ये आइडिया दिया था 1807 में, दैट पीरियोडिक फंक्शन कुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेटेड सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस वाज मेट विद स्पेक्ट्रम्स। तो हम करते क्या थे कि हम इनको कंबाइन कर सकते हैं साइन और कोसाइंस के साथ, और उसके वेटेड सम के साथ हम जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। सो how the Fourier transformation and the frequency domain, how does it work? So for one dimensional Fourier transformation and its inverse Fourier transformation continuous case अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम basic formula u use करते हैं, f of u, and then we have a f of x e to the power minus j2, and then हमारे पास है pi ux, और फिर dx आ जाता है, where j is equal to हमारे पास ये है -1 अंडर द रूट। तो और हम इसको लेते हैं -∞ से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म है अगर तो हमारे पास कंटिन्यूस केस है। तो उसके बाद इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर लेना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि f of x लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये f of x को हम लेते हैं और इसको हम इन्वर्स लेने के लिए हम फिर f of u को यहाँ पर ले आते हैं, और सेम इसी तरह -∞ से इन्फिनिटी तक हम उनके वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को लेते हैं, और हम करते क्या हैं कि e to the power j2 pi ux और du आ जाता है हमारे पास। तो सिंपल सिचुएशन में, और यहाँ पर हम अगर e लेते हैं तो e हमारे पास क्या होगा, cos थीटा प्लस j sin थीटा हमारे पास सिंपली आ रहा होगा। अगर 2 डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में सिंपली हम करते क्या है कि कंटिन्यूस केस में हम डबल समेशन ले रहे होते हैं, सॉरी डबल इंटीग्रल ले रहे होते हैं, और वो हम -∞ से सेम इन्फिनिटी तक ले रहे होते हैं। और क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो उसमें हमारे पास एक u होगा और एक v के वेरिएबल्स आ रहे होंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन f of x y आ जाएगा फिर, और e to the power -j2 pi और ux प्लस vy आ जाएगा सिंपली यहाँ पर, और dx और dy के लिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वो हमारे पास जो वेटेड वैल्यूज़ आ रही हैं। सेम इसी तरह अगर हम इन्वर्स लेना चाह रहे हैं तो हम इस f of x को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, और फिर हम सेम इसी तरह जो यहाँ पर वैल्यू माइनस आ रही थी हम उसको, क्योंकि हम इन्वर्स ले रहे हैं तो वो हमारे पास अब प्लस आ जाएगा, और ये वेरिएबल्स भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम यहाँ x y को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x और हम x और y को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमें u और v को यूज़ करना होगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास सिंपल 1 डायमेंशनल के सिचुएशन में ये फार्मूला आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और उसका इन्वर्स जो है, और सेम अगर हम 2 डायमेंशनल में लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास सिंपल ये फार्मूला आता है। अब अगर हम आगे स्टार्ट करेंगे तो हम 1 डायमेंशनल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम 2 डायमेंशनल में जाएंगे। तो 1 डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स इनवर्स, हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाएगा f of u इज इक्वल टू 1/m, m जो है वो है -1 तक, और समेशन है उसका x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। f of x e to the power -j2 pi ux डिवाइडेड बाई m, और फॉर u इज इक्वल टू u की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास चेंज हो रही हैं 0 से m-1 तक।
सेम इसी तरह अगर हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो इन्वर्स की सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है m-1 तक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x था और यहाँ पर हम u ले रहे होंगे। तो f ऑफ u एंड e इज पावर टू j टू पाई ux डिवाइडेड बाई m, और यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ को वेरी करेंगे 0 से m-1 तक। अब अगर हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो बेसिक मेथड है वो हमारे पास कैसे डिफरेंट आ रहा है, कि हम स्पेशल डोमेन जब ले रहे थे तो हम सिंपली एफ ऑफ एक्स वाई ले रहे थे, कोई भी फंक्शन, और हम उसके साथ कोई भी जो फिल्टर था उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जब हम वो मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास रिजल्ट इमेज आ जाता था कि हम उसके अंदर क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो ये स्पेशल डोमेन में था, डायरेक्ट हम उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे थे, डायरेक्ट उसके साथ चेंजेस कर रहे थे। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम आते हैं तो हम करते क्या है कि एफ ऑफ यू वी ले लेते हैं, हम सिंपली उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम करते ये हैं कि फ़िल्टर ले लेते हैं और जो भी हमारे पास फ़िल्टर आएगा हम उसके साथ मल्टीप्लाई करके जब वो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं जी यू वी, तो अब इसको हम यूज़ करेंगे और हम इन्वर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो उससे हमारे पास ओरिजिनल जो जी ऑफ एक्स वाई है वो आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन थोड़ा सा डिफरेंट है स्पेशल डोमेन से। मेजर फिल्टर्स कैटेगरीज हमारे पास जो बेसिक आ रही हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से फिल्टर्स हो सकते हैं। लो पास फिल्टर हो सकते हैं, हाई पास फिल्टर हो सकते हैं, बैंड पास और बैंड स्टॉप हो सकते हैं। तो मोस्टली हम फोकस करेंगे इन दोनों के ऊपर क्योंकि ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। टिपिकली फिल्टर्स आर क्लासिफाइड बाय एग्जामिनिंग देयर प्रॉपर्टीज़ इन देयर फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फिल्टर्स जितने भी होते हैं वो क्लासिफाइड हम उसको क्लासेस में रखते हैं जब हम उसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के ऊपर बेस करते हुए हम उसको कैटेगरीज उसके बना लेते हैं। तो लो पास एक हो गया हमारे पास, हाई पास हो गया, बैंड पास और स्टॉप बैंड स्टॉप आ जाएगा। तो हम अब इन दोनों को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या आ सकती हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो ओरिजिनल सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा होगा, तो जब हम उसको लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो वो हमारे पास चेंज हो जाता है और कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो पास हो जाती हैं और बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं जो पास नहीं होती जहाँ पर हमने कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी होती है। सेम इसी तरह हाई पास फिल्टर्ड है। तो हाई पास में क्या होगा कि जो ज़्यादातर वेरिएबल्स जो हम वैल्यूज़ रखते हैं वो पास हो जाती हैं और जहाँ पर एब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं हम उसको पास नहीं करते। तो हम यहाँ पर सिंपली फ़िल्टर के साथ ये वाली वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं और ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इमेज को शार्प करने के लिए। और जो लो पास है वो मोस्टली हम नॉइज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह बैंड पास फिल्टर्ड है और हमारे पास बैंड स्टॉप फिल्टर है। तो ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आ जाती हैं अगर हम इसको ओरिजिनल सिग्नल के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं और अब हम देखते हैं कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जो यूज़ करना है कोवोलेशन का जो फंक्शन हमने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी हम उसको यूज़ करते हैं और हमें ये पता है कि अगर हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई और उसका कोवोलेशन बनाते हैं एच ऑफ एक्स वाई के साथ, तो वो इक्विवेलेंट होगा। ये अब हमारे पास है स्पेशल डोमेन में, और अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ यू एंड वी और साथ में आ जाएगा कोवोलेशन विथ एच ऑफ u and v. So where this f of uv this is the simple frequency domain multiplication, and h of uv where f uv is the Fourier transformation of special domain function of f of xy. So this is the Fourier transformation of spatial domain from the spatial domain we have it in a
frequency domain, and then the h uv is actually the Fourier transformation of h of xy. So this. So now if we multiply two function f of xy and h of xy in a spatial domain, then the corresponding operation in the frequency domain is correlation operation. So this is also correlation operation of the Fourier transform of f of xy, which is f of u v, and that has to be confirmed with the h of u v. So there are two correlation theorem that we have done during our previous discussion. तो हमें अब ये पता है कि अगर हम सिंपली स्पेशल डोमेन में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कोरिलेशन ऑपरेशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में. अगर हम सिंपली स्पेशल डोमेन में कोरिलेशन करते हैं तो हमारे पास उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का. So now the frequency domain method, what we have, the basic method, if we take the Fourier transformation of image of f of xy, the Fourier transformation of the spatial mask, then we call it as a f of uv. So we have said that this is nothing but h of uv. This is in a particular case. Then after taking the product of f of uv and h of uv, if we take the inverse Fourier transform, then we will get the process image in spatial one. Now to analyze this further, what we will do, we will take the case of one dimensional and we will consider the first filter based on Gaussian function and analyzing for analyzing purpose. The reason we choose this filter based on Gaussian function is the shapes of which function can be easily specified and easily analyzed. Now not only that, the forward transformation and the forward Fourier transformation and the inverse Fourier transformation of Gaussian functions is also Gaussian, so it's also easy to analyze it. So now what we will do, if we take the Gaussian filter in a frequency domain, so that is h of u, and that is equal to constant a and then e to the power u minus square divided by 2 sigma, and this is a square. So where sigma is the standard deviation of a Gaussian function. So what we do, we take a sigma as a standard deviation. Now if we take the inverse Fourier transform of this, then the corresponding filter in the spatial domain will be given as a h of x is equal to 2 pi ae, and this is under the root minus 2 pi and square sigma square and x2 square. So this is what we have. We have the inverse Fourier transform of the corresponding filter. Now if we analyze these two functions, that is h of u v in a frequency domain and h of x, so these two
in the spatial domain you find that both these functions are Gaussian as well as real, and not only that, both these functions are reciprocal. So that means that when HUV has a broad profile, this particular function h of u, this frequency domain is a broad profile, that is a large value of standard deviation sigma. The corresponding h of x is the spatial domain, will have narrow profile. Similarly, if h of u has a narrow profile, then h of x will be broad profile. तो क्योंकि ये हमारे पास reciprocal आ रहे हैं, तो अगर h of u v हमारे पास broader आएगा तो h of x जो है वो नैरो आएगा. अगर h of x नैरो है तो हमारे पास h of u जो है वो ब्रॉडर में आएगा हमारे पास सिंपली. तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि in particular case when this sigma tends to infinity, then the function h of u tends to be flat function. So if this sigma is infinity, then what we have, h of u is a flat function, and if h of, in case of spatial domain filter, h of x tends to be impulse function. तो ये हमारे पास simple impulse आ जाएगा. So this shows that both hu and hx, they are reciprocal to each other. Now to see the nature of this function, we need to have a low pass filter. अब हमारे पास अगर लो पास फिल्टर है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं. अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर h of u, और वो एज अ फंक्शन ऑफ u रिप्रेजेंट हो रहा है. और हमारे पास जो राइट पे है h of x स्पेशल डोमेन फिल्टर है, तो विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो वो x का x के लिए हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं. तो फिल्टर h of u as a function of u in the frequency domain, corresponding filter h of x is the spatial domain, will have all positive values. अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भी h of u आएगा लो पास फिल्टर के लिए, तो h of x जो है वो भी सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे. A low pass filter leaves the low frequencies alone. तो जो लो पास फिल्टर है वो एक्चुअली कर क्या रहा है कि जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको वो नहीं चल रहा, वो उसको अपनी जगह पर छोड़ रहा है. वी एक्सपेक्ट अ लो पास फिल्टर टू स्मूथ द इमेज. दिस इज गुड फॉर रिमूविंग नॉइज बट ब्लर्स द इमेज. अब इसको हम यूज़ कहाँ पर करते हैं कि जब हमें
हो रहा है तो वो कुछ इस तरह होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो फिल्टर को हम विजुलाइज करते हैं इमेज के फॉर्म में तो वो कुछ इस तरह नज़र आता है। तो ये सिंपल हमारे पास जो लो पास फिल्टर से हम हाई पास की तरफ जाते हैं तो हम सिंपली उसके वैल्यूज़ को रिवर्स कर देते हैं। और बटरवर्थ हाई पास फिल्टर को अगर हम लेते हैं तो सेम इसी तरह वही वाला फार्मूला लेते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। तो 1/1 प्लस D0 डिवाइडेड बाई DUV एंड 2n ले लेते हैं। और गाजियन हाई पास फिल्टर ले लेते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी क्रिस्प आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो स्मूथ होती जा रहे हैं। ये जो ब्लरिंग इफेक्ट है ये काफ़ी दूर तक अब जा रहा है। तो दिस सीम्स सीक्वेंस फॉर टिपिकल बटरवर्थ एंड गाजियन हाई पास फिल्टर्स। हाई पास फिल्टर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं तो हम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टिपिकल आइडियल बटरवर्थ एंड गाजियन फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज़ द आइडियल, this is the Butterworth and then this is the Gaussian frequency domain high pass filters corresponding gray level profile। तो अगर हम उसके ग्रे लेवल के प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और दोनों डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास क्या उसके वैल्यूज़ प्लॉट किस तरह होंगी तो वो कुछ इस तरह नज़र आती हैं। आइडियल हाई पास फिल्टर, अगर हम आइडियल हाई पास फिल्टर को लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आएगा कि जो सिंपल एजेस हैं वो विजिबल होंगे, एज आउटपुट हमारे पास एजेस आ रहे होंगे और बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको फिल्टर कर देते हैं। रिजल्ट्स ऑफ आइडियल हाई पास फिल्टर इज़ इन इमेज ए इज़ विद D0 इज इक्वल टू 15, 30 एंड 80। तो ये 15 के लिए है, 30 और ये है 80 के लिए। प्रॉब्लम विद रिंगिंग आर क्वाइट एडवर्ट इन ए एंड बी। अगर हम ए और बी को देखते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो वो रिंगिंग इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो गया, एविडेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, नज़र आ रहा है हमारे पास। सिंपल बटरवर्थ हाई पास फिल्टर के लिए हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि अगर हम D0 को लेते हैं 15, सेम 30 और 80 तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ब्लरिंग इफेक्ट है वो भी है, लेकिन इससे आगे हमारे पास वो ब्लरिंग इफेक्ट ख़त्म होता जा रहा है। इसी तरह हमारे पास गाजियन हाई पास फिल्टर है तो अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी मोरलेस सिमिलर आते हैं क्योंकि हाई पास गाजियन है। अब हम जाते हैं लैप्लाशियन फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ। तो लैप्लाशियन के लिए भी हम करते क्या है कि हम सिंपली सेम फार्मूला लेते हैं लैप्लाशियन का, लेकिन उसके साथ जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो h ऑफ u v लेते हैं इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। शिफ्ट द सेंटर, अगर हम सेंटर को शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि लैप्लाशियन है उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं तो उसका हमारे पास शेप कुछ इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, ये उसका इमेज की फॉर्म में नज़र आएगा और अगर हम उसको प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो 3D प्लॉट ऑफ लैप्लाशियन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो ये 3D प्लॉट है उसका। ठीक है, इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये हमारे पास उसकी इमेज रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। और लैप्लाशियन इन द स्पेशल डोमेन ऑब्टेन फ्रॉम द इनवर्स DFT ऑफ बी। अगर हम इस जो हमारे पास ये इमेज है इसका हम इन्वर्स लेते हैं तो ये हमारे पास सिंपल उसका स्पेशल डोमेन में लैप्लाशियन आ जाएगा। जूम सेक्शन ऑफ द ओरिजिन, हम अगर इस ओरिजिन को जूम कर लेते हैं, जो ये हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है, तो इस को जब हम जूम करते हैं तो कुछ इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। ग्रे लेवल प्रोफाइल थ्रू द सेंटर ऑफ D to F लैप्लाशियन मास्क यूज्ड, हम इस ये जो हमारे पास लैप्लाशियन मास्क है हम इसको यूज जो कर रहे हैं। ठीक है, इमेज ऑफ द नॉर्थ पोल, अगर हम लैप्लाशियन फिल्टर्ड इमेज अप्लाई करते हैं तो हाई पास फिल्टर के लिए हमारे पास सिंपली जो फार्मूला है हम उसको g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई माइनस डेल्टा स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई, और डेल्टा f of x square is a Laplacian filtered image in a special domain।
तो हमारे पास ये वो जो आउटपुट आ जाएगी, लेकिन ये विजुअलाइजेशन के लिए हम उसको ग्रे लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको इमेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास जो आखिरी है वो है हाई बूस्ट फिल्टरिंग, और हाई बूस्ट फिल्टरिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम सिंपली फार्मूला लेते हैं f of x y is equal to a of x y minus f of low pass filter x of y। सही है, और ये हमारे पास इम्प्लीमेंट हो सकेगा -1 f of x y plus f of high pass filter x or y. So in the frequency domain, the corresponding operation, the corresponding filter can be represented as a h of high boost filter u and v is equal to a minus 1 plus high boost high pass filter u and v। तो ये अब हमारे पास सिंपली आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन की सिचुएशन में, ठीक है। ये स्पेशल डोमेन में आ जाएगा और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएगा। तो हाई बूस्ट फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग के लिए जब हम रिजल्ट्स देखते हैं तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, और हमारे पास जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हाई बूस्ट फिल्टरिंग से रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है होमोफॉर्मिक फिल्टरिंग। Many times we want to remove shading effects from an image due to uneven illumination. Enhance high frequencies, attenuate low frequencies, but perceive fine details. अब हम करते क्या हैं कि हाई पास फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम इन्हांस करते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज को, लेकिन जो लो एटेन्यूएशन है उसको प्रिजर्व करते हैं और फाइन डिटेल जो है उनको हम रखना चाहते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग मॉडल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। हम f of x y एक हम इमेज लेते हैं, तो उस सिचुएशन में I जो है वो इल्यूमिनेशन आ जाएगा और R जो है वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इन दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास एक इमेज आ जाता है, इमेज फंक्शन आ जाता है। इन जनरल द इल्यूमिनेशन component IXY varies slowly and affect low frequency mostly. In general, the reflection component RXY varies faster and affect high frequency mostly. तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये slowly change होता है जो कि illumination है और इफ़ेक्ट करता है लो फ्रिक्वेंसीज़ को, और जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो फास्ट चेंजेस आ रही होती हैं उसके अंदर और हाई फ्रिक्वेंसीज को चेंज करता है, मोस्टली उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। सो व्हाट इज द आइडिया नाउ? सेपरेट लो फ्रिक्वेंसीज ड्यू टू आई एक्स वाई फ्रॉम हाई फ्रिक्वेंसीज ड्यू टू आर एक्स वाई। तो अब हम करते क्या हैं कि जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं और हाई फ्रिक्वेंसीज हैं उनको आपस में से सेपरेट कर लेते हैं। हाउ आर फ्रिक्वेंसीज मिक्स टुगेदर? Low and high frequencies from IXY and RXY are mixed together. नॉर्मली ये मिक्सड होती हैं, तो जब हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में f of uv हमारे पास आएगा IUV into RUV आ जाएगा। When applying filtering it is difficult to handle low and high frequencies separately. तो हम अगर इसको सेपरेटली हैंडल करना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला फार्मूला आ रहा है। अब हमारे पास आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हम we can separate them by taking the integral of f of x y। हम अगर इंटीग्रल लेते हैं सिंपली, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इंटीग्रल लेते हैं f of x y का इंटीग्रल ऑफ i x y प्लस इंटीग्रल ऑफ r x y, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सिंपल जो स्टेप्स हैं होमोफॉर्मिक फिल्टरिंग के लिए वो बेसिक ये हैं कि हम पहले इंटीग्रल ले लेते हैं, हमारे पास टोटल जो है 5 स्टेप्स आ रहे हैं। इसके बाद हम करते क्या है कि अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ इंटीग्रल, सेम हमारे पास जो इंटीग्रल हमने अप्लाई किया था
उसके साथ अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी डोमेन आ जाएगा, अप्लाई करते हैं h ऑफ u v, देन टेकिंग द इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब उसके बाद हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है। जब हम इन्वर्स ले लेते हैं तो उसके बाद हम उसका एक्सपोनेंशियल कॉल कर लेते हैं, टेक अ एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास दो डिफरेंट फार्मूलेज हैं जिसमें हम कोई एक अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल स्टेप्स आ जाते हैं कि हमारे पास एक इमेज है और होमोफॉर्मिक फिल्टरिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हम इंटीग्रल लेते हैं, फिर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रिक्वेंसी के साथ अप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं और उसके बाद हम उसका एक्सपोनेंशियल कॉल कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसीज को देखना चाहते हैं तो रेडियल क्रॉस सेक्शन ऑफ द circularly symmetric homomorphic filter function. The vertical axis is the center of the frequency rectangle and the duv is the distance from the center. तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द सेंटर से हम जा रहे हैं और ये सिंपल एच यू वी के वैल्यूज आ रहे हैं. तो एटेन्यूएशन the contribution made by illumination and the amplification and contribution made by reflection. तो यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाएबल हैं. अगर हम इसके रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दोनों इफेक्ट डाल रहे हैं. ओरिजिनल इमेज प्रोसेस बाय द होमोफॉर्मिक फिल्टरिंग, नो डिटेल इनसाइड. अगर हम इसकी डिटेल को देखते हैं तो बहुत इजीली विजिबल हैं. जो एरियाज शार्प हैं उसको शार्प कर दिया है बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर नॉइज़ है हमने उस नॉइज़ को भी रिमूव कर दिया है. तो ये हमारे पास सिंपल होमोफॉर्मिक फिल्टरिंग की एग्जांपल आ रही है. हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं होमोफॉर्मिक फिल्टरिंग के लिए. तो बॉडी पेट स्कैन है और इमेज इन्हांस यूजिंग होमोफॉर्मिक फिल्टरिंग है यहाँ पर, और ओरिजिनल इमेज कंट्रास्ट ऑफ कर्टेसी ऑफ डॉक्टर मिखाइल. तो ये आज का लेक्चर था हमारा. हम जो इतने भी हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ़िल्टर्स थे हमने आज उसको डिस्कस किया. काफ़ी क्विकली हम गए और बहुत सारी चीज़ें हमने एज्यूम की कि आपको आती होंगी. जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फास्ट फोरियर सीरीज़ हो गए, तो ये सारे आपको ऑलरेडी आइडिया होगा. तो अगर हम इनको यूज़ करते हैं लो पास फिल्टरिंग के लिए और हाई पास फिल्टरिंग के लिए तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए. तो आज तक के लिए इतना काफ़ी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से अगले टॉपिक्स देखेंगे. अल्लाह हाफिज़.